All right. So like I was saying, today is inshallah the last online theory part of the course, and then we can individually meet for supervision to discuss the plans. Whether you decide to work with individually with a child or in one of the camps, Green Island के कैंप हम कर रहे हैं, उसके अलावा अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मंडे से हम जो है वो एक ऑर्फनेज में स्टार्ट कर रहे हैं मॉर्निंग के टाइम पे. इफ एनीबडी वांट्स टू गेट इन टच विद मी अबाउट दैट तो फिर मुझे बताना. वो मंडे से लेके फ्राइडे तक है, 5 days का. एंड देन ऑब्वियसली ईद के बाद हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं, तो वी कैन डिस्कस दैट फॉर इंटर्नशिप. ऑल दीज इंटर्नशिप्स आर कम्युनिटी प्लेसमेंट, जिसका ये मतलब है कि ये नॉर्मल बच्चों को इमोशनल लिटरेसी सिखाना या ऐसी एक्टिविटी सिखाना जिससे वो अपने फीलिंग्स और इमोशन से इन टच होंगे और उनको मैनेज करना सीखेंगे. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन community placements, right? So before we start, any questions, any thoughts about the previous session or what we have done so far in the second module, जिसमें हम emotional management में 2 topics कर चुके हैं. एक इमोशनल लिटरेसी कर चुके हैं और दूसरा इमोशन रेगुलेशन यानी अपने इमोशंस को मैनेज करना. Any questions about the last 2 sessions? No. ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है हम आगे बढ़ेंगे. Audible? जी जी हुरिया बोलो. मेरा एक क्वेश्चन था कि if like I tried it with my cousins who are below like 7-8 years, like they are of 5 to 6 years. They are unable to differentiate between the feelings like happiness and joy, sadness and fear. It's very difficult to teach them. So, like, what are some points to highlight for them and help them to highlight for them? Like, if first of all they get liberated over it, and then they have the ability to regulate. Very good point, Huria. And thank you for using the magic word, which is you were teaching them, right? So कोई भी चीज अगर आप सीखने चाहते हो और इस एज पे जहां आप बोल रहे हो between 5 to 6, if you have been taught a concept the first time, then it takes time, right? हम जो काम करते हैं इस तरह के कैंप्स में या इस तरह की क्लासेस में, उसको हम कहते हैं प्लांटिंग द सीड, यानी आपने एक पहला बीज बोया है, राइट? So any concept that you need to teach, you need to reinforce again and again. तो उसके certain steps हैं. एक step ये है कि आप सारी feelings या emotions को एक साथ नहीं करते. अगर आपको याद है when we were planning, I clearly said for the little children between the ages of 5 to 6, you start with only 4 emotions, right? 4 basic, 6 भी नहीं, 4. और उसके अंदर आप जो है ना हाईलाइट करें. फिर अगर आप जैसे रिमेम्बर मॉन्टेसरी में हम करते हैं रेड कलर सिखा रहे हैं, तो हम रेड डे बनाते हैं, तो एवरीथिंग इज रेड एंड यू कॉन्स्टेंटली reinforce it and you associate it with different things. The same philosophy is here. When you're talking about happy, you're only talking about happy, right? And you're talking about what happiness feels like. You give them examples कि जब ऐसा हुआ था तो आपको कैसे लगा, जब यूं होता है तो आपको कैसे लगता है. यानी रोल प्ले हो गया, सिनेरियोज हो गया, रियलिटी से आपने उसको लिंक किया so that they are able to link it and associate it with either a memory or a feeling, right? And when they do it, they will be able to hopefully understand. So it's not just oh happy है, it's about अच्छा आपको क्या चीज हैप्पी करता है, या आप कब हैप्पी होते हो, या जब आप हैप्पी होते हो तो कैसा लगता है, या जब मम्मा आपकी फेवरेट डिश बनाती है, या आई डोंट नो आपको कहीं जाना था और आप वहां गए, राइट? कोई पार्क में गए या नानी के घर गए. Anything that they really want and they can associate that feeling with. And that's how you reinforce the concept, right? Because they're beginning to learn. वही चीज आप सैडनेस के साथ भी करोगे, वही चीज आप अपसेट या एंग्री के साथ भी करोगे. एक एक वक्त में एक इमोशन उठा के उसके सिनेरियो, उसके रोल प्ले माइंड में करें, एंड व्हेन दे डू इट दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अंटिल वी गो टू द सेकंड स्टेज. रिमेंबर जब हमने पिछले क्लास में इमोशनल कोचिंग की बात की थी, तो हमने कहा था पहले आप सिखाते हो, जब आप सिखा लो उसके बाद दूसरी सीढ़ी पे स्टेप क्या है, दैट यू
reflect and you tell them wow you're very happy, यानी आपने उसके इमोशन को आइडेंटिफाई करके दिया। अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वो उस पॉइंट पे आए कि आप हैप्पी हो और वो आपको बोले, यानी अब उसने अपनी फीलिंग भी आइडेंटिफाई कर ली और आपकी फीलिंग भी। सो ऑल दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ एफर्ट इन टीचिंग कॉन्स्टेंटली। नथिंग इज लाइक दिस कि आपने स्नैप किया और सब आ गया। तो कोई भी टीचिंग एफर्ट लेगा, बट एज लॉन्ग एज यू गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, inshallah hopefully things will work out. A lot of the schools now have an ELC program, which is an emotional, sorry, ESL program, which is emotional social learning program, जिसके अंदर पूरा साल जैसे करिकुलम की प्लानिंग होती है ना, इंग्लिश उर्दू मैथ्स की होती है, बिल्कुल उसी तरह इमोशनल लिटरेसी की प्लानिंग होती है, यानी पूरे साल में डिसाइड करते हैं वही अमरीन वाली बात कि कौन से एज पे क्या चीज किस तरीके से पढ़ानी है बच्चों को। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ, देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट दैट नीड्स टू बी taught. Hopefully ये चीज क्लियर हो गई। Thank you so much. Yeah, okay, so what we are doing to what we're going to do today is we're going to pick up the last two concepts, और क्योंकि दोनों concepts linked भी थे और दोनों जो है वो एक flow में ही आ रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह दोनों को आज एक साथ करेंगे। So we have done emotional literacy यानी labeling the emotions, and then we moved on to emotional regulation यानी आपने label तो कर दिया लेकिन उस labeling को identify करना अपने ऊपर भी, and then learning how to manage कि what do I do। मैंने आपको 3 stories डाली हैं ग्रुप में, पॉसिबल हो तो तीनों को देख लेना उसकी वीडियो। All three of them help the children to reflect. So basically, before they act on something, they are going to stop and think. And this is emotional literacy. Emotional management यही है कि before you react, you respond and you stop and reflect and then take a decision कि अच्छा मुझे क्या करना चाहिए, उसने मुझे मारा तो क्या मुझे भी मारना चाहिए या मैं कुछ और कर सकता हूँ। What do I do with all that anger and how do I respond? What are my choices, right? तो हमने wheels of choices या what can I do to make myself feel better वाली बहुत सारी activities last class में भी discuss की। The best idea is to work with the children and to help them identify what works for them. मैंने आपको बार बार कहा था कि इसमें हमारे पास एक prescription नहीं है। We need to help the children get a lot of items in their toolbox so that they can decide अच्छा मैं ये choose कर सकता हूँ, मैं ये choose कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। तो आज हम moving forward जिस concept को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे वो teaching children empathy. Now I used the magic word and the magic word here was teaching. यानी कि आपने बहुत सारी चीजें आप आजकल के दौर में हमें कॉन्शियसली अपने बच्चे को सिखाना पड़ रहा है। Some things which I believe that I don't recall as an adult, मुझे as a child बिठाया गया और सिखाया गया। But the way things are, we need to now consciously make an effort to teach our children. And one of the things that we should definitely teach is empathy. राइट अब एम्पैथी क्या है, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि आप अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करो, अपने इमोशंस को समझो, अपनी जो फीलिंग है उसको लेबल करो कि व्हाट आर यू फीलिंग एंड देन व्हाट कैन आई डू टू मेक माई सेल्फ फील बेटर। अब तक हम ये 2 क्लासेस में कवर। आज जिस कॉन्सेप्ट को हम उठा रहे हैं वो ये है कि अच्छा अपनी फीलिंग को तो आप समझ लो लेकिन दूसरों की फीलिंग को क्या करोगे, दूसरों की फीलिंग को किस तरह समझोगे। हमने हमेशा से कहा है कि when we talk about child development, we talk about the concept of piles, right? PILES। जो टीचर्स हैं उनको पता है पाइल्स क्या है, बहुत सारी किताबों के पाइल्स आप चेक कर रहे होते हो, राइट? जो खुदा न खास्ता मेडिकली पाइल्स का पता है आपको, दोज हु of you who have struggled with piles, it's a very painful condition। लेकिन साइकोलॉजी में पाइल्स जब हम बात करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो when we talk about that, you need to remember that piles में P जो है वो फिजिकल है जो आपके सामने है, I से क्या है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, L से क्या है लैंग्वेज डेवलपमेंट, PIL। E और S हमेशा साथ आएंगे जो कि क्या है इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। अल्लाह ने बनाए ही इमोशंस आपके एक्सप्रेशन के लिए हैं, एंड टू एक्सप्रेस योर इमोशंस यू नीड समथिंग, you we are social beings। हम एक दूसरे से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, हम अकेले नहीं रह सकते, आइसोलेशन में नहीं रह सकते। सो
keeping that concept in mind, teaching empathy is so important because we are all social beings and we interact with other people. तो empathy जो है वो 3 मेजर सवाल हैं जो हम बच्चों को सिखा रहे थे. What would the person be feeling? यानी एक ही सिचुएशन में आप कैसा फील करो और दूसरा इंसान कैसा फील कर रहा होगा. What if I felt that before? Right? क्या मैंने ऐसे फील किया पहले, समझने के लिए. रिमेम्बर हम कह रहे हैं कि बच्चों को समझ नहीं आता तो हम कहते हैं अच्छा आपने कभी सैड फील किया है, आप कभी अपसेट हुए हो, आप कभी एंग्री हो, सो दैट दे अंडरस्टैंड अच्छा उनके ऊपर क्या गुजर रही है. और फिर हम उसको बोलते हैं अच्छा जब आपके ऊपर ऐसी गुजरी तो आपको क्या करने का दिल चाह रहा था, आप कैसा फील कर रहे थे. फिर हम उनसे एम्पैथी में जाके अपनी फीलिंग पे भी रिफ्लेक्ट कराते हैं और दूसरों की भी फीलिंग पे. राइट. तो साइकोलॉजी का जो कोर है या साइकोलॉजी का जो बेस है, चाहे वो थेरेपी की दुनिया है, चाहे वो इमोशनल लिटरेसी की दुनिया है, अ लॉट ऑफ इट रिवॉल्व्स अराउंड एम्पैथी. एम्पैथी होगी तो आपको इतना ख्याल होगा कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, दूसरों के बारे में भी सोच रहे होते हो. राइट. तो अक्सर जब हम एम्पैथी की बात करते हैं तो एक जुमला बार बार सुनने को मिलता है, विच इज समथिंग रिलेटेड टू एम्पैथी इज कि आप अपने आप को दूसरे के शूज में डाल के देखो. राइट. तो आज हम जरा ये देखेंगे कि किस तरह से हम किसी अपने आप को किसी और के शू में डाल के देखते हैं कि वो कैसे फील कर रहा है. लेकिन एम्पैथी के बारे में जो चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एम्पैथी इज नॉट फीलिंग सॉरी फॉर समबडी. राइट. यहाँ पर एम्पैथी इज एंड एम्पैथी इज नॉट को थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं. तो empathy is not feeling sorry for somebody. Empathy is not trying to change someone's emotions. जबरदस्ती आप नहीं कर रहे हो, आप उसकी पोजीशन को समझना चाह रहे हो. और जैसे मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि एम्पैथी या साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है इज नॉट टू गिव एडवाइस. बिल्कुल भी नहीं. ये अगर आप सोच रहे हो कि एडवाइस के लिए जा रहे हो और वो एडवाइस दे रहा है तो वो एज अ साइकोलॉजिस्ट शायद काम नहीं करा, मे बी एज अ फ्रेंड या एज अ काउंसलर आपको बता रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली नॉट एज अ गुड साइकोलॉजिस्ट. की निशानी ये है कि वो आपको फैसिलिटेट करे, यानी बहुत से ऑप्शंस दे के आपको इनकरेज करे कि यू मेक द फाइनल डिसीजन, यू डिसाइड व्हाट आर योर चॉइसेस. और इसीलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग द चाइल्ड सो मेनी ऑप्शंस के यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं. कुछ बच्चे यूं करते हैं, कभी कभी कुछ लोग यूं करते हैं. आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन होगा. राइट. व्हेन यू गेट एंग्री व्हाट कैन यू डू, what are the options that you have? The option and the final selection has to come from that particular child or individual. और इसी तरह एम्पैथी, जैसे मैंने आपसे कहा कि एम्पैथी की जो फीलिंग है वो हम बच्चों को किस तरीके से सिखाते हैं. आप उनको ये बोलते हो कि एम्पैथी यानी किसी और की फीलिंग को समझने के लिए आप 3-4 चीजें हैं जो बच्चों को सिखाते हैं. अब अगेन हुरिया आपकी बात कि दिस ओनली कम्स व्हेन यू आर कॉन्शियसली अवेयर. हमारा काम क्या है, हमारा काम है प्लांटिंग द सीड. यानी आज अगर आप एक कॉन्सेप्ट डाल रहे हो तो वो फौरन नहीं आएगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आपने डाला तो है उसके दिमाग में. राइट. For instance, I don't know, it's probably not a good example, but considering कि मुझे बहुत आगे चल के algebra पढ़ना है, right? लेकिन algebra मुझे उस वक्त समझ आएगा जब मैंने मॉन्टेसरी में ABCD पढ़ी है. तो वो ABCD आगे चल के सेंस बनेगी, ओ दिस इज दैट A, दिस इज दैट B. तो मेरा कहने का मकसद है कि आप प्लांटिंग द सीड तो करें, आप इंट्रोड्यूस तो करें बेसिक इमोशंस, फिर आगे चल के एम्पैथी, फिर आगे चल के केयर एंड काइंडनेस आता है. बट you start the concept because right now you are teaching, you want to bring the child to a point where they are doing this themselves. जैसे हम कहते हैं अनकॉन्शियसली, क्योंकि आपने इतना उनके सिस्टम का हिस्सा बना दिया. लेकिन वो कैसे आएगा, वो उस वक्त आएगा जब आपने उनको पुश किया है, सिखाया है, सिखाया है, सिखाया है. राइट. सो अगेन आई रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड सम टाइम बैक. बहुत सारे ये वाले कॉन्सेप्ट हमें कॉन्शियसली किसी ने नहीं सिखाए. Our generation was a different generation. Today's generation is overstimulated, right? There is so much going on that जो basic values हैं, जो basic ethics हैं, वो हमें बिठा के इनको सिखाने पड़ रहे हैं. Something we just picked unconsciously. We need to consciously right now teach our children. And one of them is the concept of empathy.
राइट। तो एम्पैथी हम क्या बोलते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि वो दूसरा इंसान अपसेट हो रहा है, या आपको कैसे पता चलता है कि वो इंसान हर्ट हुआ है? हाउ आर यू रीडिंग दैट पर्सन, राइट? यू आर रीडिंग आइदर थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशंस, और यू आर रीडिंग थ्रू द टोन, और यू आर रीडिंग थ्रू द बॉडी लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है भाई, वो अपने फेस से अपसेट लग रहा है, वो रो रहा है, या वो बिल्कुल रेड हो गया है, राइट, या वो आपसे खुदा न खास्ता शाउट कर रहा है, या कोई ऐसी बात कर रहा है, या उसके बॉडी लैंग्वेज से, फॉर इंस्टेंस वो किक कर रहा है आपको, या वो किसी चीज को स्टैम्प कर रहा है, या वो किसी तरह से शो कर रहा है दैट आई एम अपसेट और एंग्री। दोज आर द काइंड ऑफ cues that we read to be able to understand the reaction of others, right? अभी आज हम जितनी बातें कर रहे हैं वो दूसरों को समझने के लिए कर रहे हैं, तो ये वो छोटी छोटी चीजें। अच्छा, इसका बेस्ट तरीका सिखाने का क्या होगा? हाउ डू यू टीच एम्पैथी टू चिल्ड्रन? अगर आप में से किसी ने ये एक्टिविटी की है तो यू नो दैट इट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग। आई ऑलवेज एंजॉय इट, एंड अगेन आई हैव डन दिस विद चिल्ड्रन। आर्यन नजर, या कैन यू सी? Yes. Yes. Perfect. Acha, so I was asking that I don't know if you have tried this activity, but it is one of my favorite ones, and I have tried it with children as young as grade 1, right? सिखाना क्या है इसमें? हमें सिखाना ये है कि how the other person feels when we do something hurtful to that person, right? Why we are doing that? Because we want to understand कि मैं अपनी फीलिंग को तो समझ रही हूँ, लेकिन मैं दूसरों की फीलिंग को भी समझूं कि वो कैसे फील कर रहा है। तो वन ऑफ द एक्टिविटी सिंपल हार्ट काट के हमने पीस ऑफ पेपर दे दिया, यू कुड डू इट विद अ नॉर्मल पेपर आल्सो, बट अगेन वी वांट टू टीच द चिल्ड्रन अबाउट hurt or how it feels when the other person is hurt. तो हमने heart दिया और हमने उनसे कहा कि hold this and think of all the times when you have either said something upsetting to somebody, or you have hurt somebody, or sometimes it could be about how somebody has said something to you. दोनों तरीके से ये activity हो सकती है. And every time they think of that, they will take the paper and they will crush it. So basically, they're taking out their anger or frustration or whatever on that heart, right? When we've done it 3 or 4 times, you will ask them, अच्छा चलो, अब आप बोलोगे, अच्छा अक्सर हम क्या बोल देते हैं, बच्चे इतनी आराम से सॉरी बोल देते हैं, oh sorry, I'm sorry, right? And the difference between understanding that the wounds that have been created in the heart that cannot be undo, right? तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा इस हार्ट को अब आप ओपन करो, इसको देखो, what is that? Whatever you say, even if you say sorry, even if you try, there are still wrinkles or there are still marks on the heart, right? So what we do is, even if you have hurt somebody, the marks or the scars will always remain. Now, sometimes it can be very overwhelming or upsetting for the children to say कि अच्छा सही है, मैंने सॉरी भी बोला लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो कि इसमें मार्क्स रह गए हैं. What And that's where we teach them how important it is to take care of your own heart and the heart of the other person. इसके बाद जो एक्टिविटी हम कराते हैं, वो दोनों एक्टिविटी हमेशा साइमल्टेनियसली होती है, तो उससे बच्चों को समझ आ जाता है अच्छा आप क्या कर सकते हो, so that we don't want to leave them with feelings where they are thinking, oh, whatever I do, it's basically I've done something wrong and there is no undo basically, right? ये भी फीलिंग नहीं देनी, लेकिन फिजिकली उनको ये फीलिंग भी समझानी है, या ये इंफॉर्मेशन भी एक वेट देना है उनको कि आप इस बात को समझो कि when you hurt someone or when somebody is hurting somebody, then you leave scars on the other person's heart, which cannot be undone by just saying sorry, right? Sorry is such a word that people say it either under pressure or just say it बोल के खत्म करो. उसको sorry का worth भी सिखाना है, right? So again, these are concepts which I'm telling you, I don't recall consciously that हमें बिठा के सिखाया गया, लेकिन अब बहुत ज्यादा जरूरत आ रही है कि हम ये values को, ये concepts को consciously अपने बच्चों को सिखाएं और समझाएं. So normally what we do is a role-playing activity where we give a different scenarios to understand, and then we do the heart activity. And once we've done the heart activity, we do a kind of heart secret notes. अभी मैंने आपसे क्या कहा, जब वो scars आ जाते हैं heart पे, तो
क्या फील होता है कि whatever you do, the pain or the scars or the impressions or the hurt still remains, right? Because you always remember in the memory. So what can you do? You have to now consciously teach empathy के साथ kindness, right? Kindness is something which again हमारे बच्चों को हमें सिखाना पड़ रहा है to be kind, whether it is to be kind to animals, whether it is to be kind to children with other special needs, right? Or whether it is being kind to all the people around them. हर किस्म के लोग हैं. Tolerance, tolerance again is a concept जो अभी हमें consciously अपने बच्चों को सिखाना पड़ रहा है कि आप थोड़ा सा तो रूम दो, थोड़ा थोड़ा स्पेस दो. अगर उसका परसेप्शन आपके परसेप्शन से या उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंडरस्टैंडिंग या उसका ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफरेंट है, as long as it's their opinion and there is no harm in it, it's fine. You know, the concept of agreeing to disagree is something which आज हमें बहुत ज्यादा consciously अपने बच्चों को सिखाना पड़ा है. तो a good activity after the wrinkled art activity is this one, when we give them another piece of art and we ask them to write invisible notes. ये वैक्स क्रेयॉन्स, वाइट वाले वैक्स क्रेयॉन्स हम इनको देते हैं. इसके बाद हम उनसे कहते हैं अच्छा आप क्या नोट लिखना चाहोगे, चाहे वो सीक्रेट मैसेज है या सीक्रेट नोट है या जस्ट अ ड्राइंग है जो आप अपने फ्रेंड को काइंडनेस के लिए देना चाहोगे. So that's a good activity where we ask them to exchange these hearts so that वो जो scars वाली बात थी वो थोड़ा सा उनको ये फीलिंग आए कि I can do something to make a difference in the person's life, because leaving them with a very overwhelming feeling that oh, you have caused pain or scar in somebody's heart and you can't do anything can be more disturbing and distressing, and we don't want that. So immediately after that, this activity works very well. Uske baad, one of the things which I also learned in my own life, right, about kindness, I believe that so there was a time when I was stuck on something very badly, and I asked somebody for help, and that person, and when I thanked that person, and she turned around and said, "You really want to thank me?" And I said, "Of course I want to thank you." And she's like, "अच्छा अगर आपको मुझे वाकई thank करना है, तो फिर make sure that next time somebody comes to you for help, you try your best to help, right?" And that stayed with me forever. That the least you can do is carry on the helping chain. अगर आपको किसी ने कभी जिंदगी में कहीं तो हेल्प किया होगा, कम से कम जो आप कर सकते हो is carry on the helping chain. Now, sometimes you can genuinely help by making a difference in the person's life because आप कुछ कर सकते हो, आपके इख्तियार में है. And sometimes you cannot do anything. अगर वो आपको कोई ऐसी बात बता रहा है और आप उस तरीके से फिजिकली उसकी जिंदगी में कोई चेंज नहीं ला सकते हो, so the least you can do is be there in terms of supporting, hearing that person out, and kind of empathizing, understanding the other person's point of view, right? So a lot of what we do again in counseling is empathy, so that हम अपना point of view, मैंने आपको example भी दिया था ना कि मुझे शदीद बिल्लियों से डर लगता है, लेकिन अगर आप मेरे पास एज ए क्लाइंट आ रही हो और कह रही हो कि बिल्लियों से डर लगता है, तो मैं थेरेपी में ये नहीं बोलूंगी इसमें क्या बड़ी बात है, मुझे भी डर लगता है. या मैं आपको ये नहीं कहूंगी हाँ बिल्ली से डरने वाली क्या बात है, देखो इतनी प्यार से बिल्ली को हम प्यार करते. मैंने अपना पर्सपेक्टिव नहीं बताना है, मैंने आपकी बात को समझना है और आपके इमोशन और फीलिंग को रिफ्लेक्ट करना है और एक्सप्लेन करना है. Okay, so can you tell me why is it difficult for you? Yeah, what happened to cause you so much, fear related to cats? So, उसी concept को समझते हुए empathy में आप जो least जो कर सकते हो वो being there to support है. तो one of the things that we do is a helping chain. वो भी बहुत मजा आता है बच्चों को करने में, बड़ों को भी करने में. Is carrying on. I have done something good.